Hey guys, it's Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just want to continue my teaching journey. And for the ones who must have watched know that I've made a video on orientation to first year junior anesthesia residents. And I just tried to give you an overview of what is expected of you and what you should be doing inside the OT so that you make your own life easier and be better with your seniors, because it's very simple. If you do do the correct kind of work, if you follow the process, it's really simple. You देखो, बस ये होता है सीनियर का जो एम होता है, बस यही होता है कि काम हो जाए, ठीक है. इन मोस्ट प्लेसेस नाउ देयर माइट बी सम सीनियर्स हु आर रियली टॉक्सिक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप काम ठीक से करते हो, nobody will be what do I say, not happy with you. Okay, nobody will be not liking you. अगर आप अच्छे हो अपने काम में, अगर आप काम कर लेते हो सब कुछ झटपट and you are paying attention to what is to be actually done, तो आपके सीनियर आपको लाइक करेंगे, आपको और सिखाएंगे. तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, आपको करना क्या है. तो या, इफ यू हैवंट वॉच्ड माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज गो अहेड एंड वॉच इट. And the first step that I explained over there was your OT prep. Okay, the first thing that you do when you go inside the OT, when you reach the hospital and get into your OT, the first thing that you do is your OT prep. Now, see, in different places I've seen different things. In my residency, I think it was the best thing that they did with us, because हमको रोज आदत डाली गई है, ठीक है, टू स्टॉक द OT कम्प्लीटली. आगे चल के, लाइक आई सेड इन वन ऑफ माय वीडियोस एज वेल, आगे चल के जब अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करोगे या मेडिकल कॉलेज में काम करोगे, तो आपके लिए सारा काम हो जाएगा. You will not have to do all the mechanical work that is involved with preparing an OT or stocking up the OT. But yes, I would say that you should know everything. ठीक है, if you are someone who's doing DNB from a corporate hospital, आपको शायद अब भी नहीं करना होगा. The only thing you have to do in OT prep is go to your OT and load your drugs. But that is okay, that is fine. But you should know what should be inside your OT, because आगे चल के, even if you go for freelancing or somewhere where you are independent of your case, even if you have your juniors, you are the senior most, you should know what is around in the OT, what should be in the OT. ये सब आपके, क्योंकि the responsibility lies on you. So what I'm saying is, even if you are at a place where it is just required for you to go in the morning and just prepare the drugs, just आपको drugs load करने हैं, वेंटी चेक कर लेना है, इतना ही अगर आपका OT प्रिपरेशन होता है तो वेल एंड गुड फॉर यू. अभी जिंदगी आसान होगी, बट आगे चल के आपको दिक्कतें आ सकती है, ठीक है. जब आप अटक जाओगे और किसी दिन कुछ इमरजेंसी आ गया एंड यू रियलाइज दैट समथिंग इज नॉट देयर इन द OT एंड यू कांट डू एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल बी स्टक रियली बैडली, ठीक है. तो बेटर यही होता है कि आप इस वक्त पे, जब आप रेसिडेंसी में हो, आपको सारी चीज़ें पता हो. अगेन, like I said in my previous video, this is not a theoretical thing. This is for your own benefit as an anesthesiologist, and also that you will be able to perform well in your OT around your juniors and seniors. So I think it will be helpful in that. Okay, so yeah, the first thing that you do in your OT prep is you check your machine, which I already told you in the previous video as well as just now, that you have to check your machine. Now, आपके यहाँ जो कोई भी मशीन होगा, every place has different kind of machines, ठीक है. तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह का मशीन है, कैसे उसमें चेकिंग होती है, बिकॉज देर आर सम मशीन्स दैट हैव ऑटोमेटेड चेक्स, ठीक है, और कुछ होते हैं जो मैनुअली करने पड़ते हैं. सो ईदर वेज यू विल बी टॉट ऑब्वियसली, एंड बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है जो मशीन ऑटोमेटिक जो चेक्स होते हैं. इट्स रियली सिंपल. दे लिटरली हैव दोज स्टेप्स written down on the screen and you just have to follow those and get the leak test done. And जो मैनुअल होता है वो भी बड़ा सिंपल होता है. जस्ट हैव टू ब्लॉक द पेशेंट एंड सी इफ द बैग इज फिलिंग और नॉट, इफ द वेंटी इज वर्किंग और नॉट. सो इट्स रियली सिंपल. योर सीनियर्स विल टीच यू, एंड ये हर जगह होता है. सो दिस इज नथिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. यू विल बी टॉट, एंड मुझे लगता है कि हर जगह होता है. ये तो बेसिक चीज़ है जो सबको सिखाई जाती है एंड आपको आ ही जाएगा. सो नथिंग मच टू बी फोकसिंग ऑन इन हियर. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग that you would be checking is your soda lime. Now this is something you miss, and मुझे याद है हमको बहुत बार
इस पे गलती हो गई थी हमारी इस पे कि हमने सोडा लाइम चेक नहीं किया है. सोडा लाइम, I think you would know if you have stepped inside the OT. You would know there's a canister kind of a thing that is attached to the ventilator. ठीक है, तो इसके अंदर होता है सोडा लाइम. इट्स सपोज टू टेक अप ऑल दैट कार्बन डाइऑक्साइड दैट द पेशेंट इज एक्सेलिंग. ठीक है, तो ये जो सोडा लाइम है, इट द कलर चेंजेस. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोडा लाइम एज वेल. ठीक है, इसमें इंडिकेटर्स अलग तरीके के होते हैं. कोई कोई जो है पिंक होता है जो वाइट हो जाता है, कोई कोई वाइट होता है जो पिंक हो जाता है. ठीक है, मैंने दोनों तरीके के देख रखे हैं. तो आपके यहाँ जो कोई भी हो, just make sure that it is changed once it's color changes, or make sure that कहीं कहीं तो एवरीडे किया जाता है, कहीं कहीं इट डिपेंड्स, लाइक इफ देर आर 4 to 5 केसेस इन अ डे एंड कलर चेंज हो गया है तो दे चेंज. अदरवाइज सम पीपल वीकली चेंज किया जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट्स बिन यूज्ड और नॉट. सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर आपके यहाँ जो भी फॉलो होता है उसके हिसाब से आप सोडा लाइम का देख सकते हो. बट मेरा पॉइंट ये है कि इसके लिए डांट मत खाना. कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, आपको बस एक नज़र मारनी है कि ठीक है या नहीं ठीक है. बिकॉज इफ़ सपोज उसका यूजुअल कलर पिंक होता है और वो वाइट हो जाता है, तो ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ है कि ओटी में वी हैव सीन कि वाइट कलर हो गया हो एंड वी हैव नॉट रियलाइज्ड इट, एंड लेटर सीनियर कम्स इन, सीज की केस भी चल रहा है, सीज की वो वाइट हो गया है एंड EtCO2 बढ़ रहा है एंड टैकी हो गया पेशेंट, BP बढ़ रहा है, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर सोडा लाइम. सो यू डोंट थिंक कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़. ठीक है, अगर ये आप ठीक से ध्यान नहीं दोगे इस पे, इसको चेंज टाइमली नहीं कराओगे, तो डेफिनेटली इट इज़ harmful for the patient also, and you will also be stressed out the whole time inside the OT. So it's very important to change this at the proper time. ठीक है, so that's the second thing that I want you to look at. The third thing you do is detangle. अब काफ़ी जगह ये फॉलो नहीं होता होगा, बट हमको इस पे मार पड़ती थी. We had to detangle all the wires, everything. जो आपका SpO2 प्रोब होता है पल्स ऑक्स का, ECG लीड्स के जो वायर्स होते हैं, ECG के जो वायर्स होते हैं, एंड जो BP कफ होता है और उसका ट्यूबिंग होता है, ये सब कुछ डिटैंगल्ड होना चाहिए. प्लस ये भी था हमारे यहाँ ऐसा था कि ये जो कभी कभी ऐसा होता था कि BP कफ हर OT में नहीं अवेलेबल होता था. तो वी हैड टू मेक श्योर सम ऑफ दीज थिंग्स वी हैड लेस. ठीक है, तो ऐसा होता था कि जब वहाँ केस किसी OT में जब केस हो रहा है, दैट टाइम वी हैव टू टेक एवरीथिंग टू दैट OT. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होता था कि व्हेन अ पेशेंट इज बीइंग टेकन इन, इससे पहले ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो, अवेलेबल हो. तो ये भी मेक श्योर करना कि ये सब चीज़ें वहाँ हो. ठीक है, और ये भी कि ये डिटैंगल्ड हो. हमको मार पड़ती थी जब अगर डिटैंगल नहीं हुआ हो, तो हमको बोला जाता था कि ये कैसे रखा है, क्या रखा है. तो सम प्लेसेस इट इज देयर. आई डोंट थिंक आजकल इस पे कुछ होता है, बट दिस इज आई वुड से गुड प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ. क्योंकि अगर आप उलझे हुए वायर्स और ये सब के साथ काम करो तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है. इट इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ, एंड ऑल्सो फ्यूचर में अगर कोई टेक्नीशियन भी आपके पास है या जूनियर्स भी आपके पास है, तो आप उनको कह सकते हो कि कर दो, है ना. बेटर टू पिक अप गुड प्रैक्टिसेस, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. तो ये होता है जो आपको तीसरी चीज़ करनी होती है. चौथी चीज़ जो आपको करनी है, चेक फॉर नाइट्रस एंड O2. तो फ्लो मीटर होता है, ठीक है, वहाँ गेज बना हुआ होता है. हाउ डू आई शो इट? ओके, I'll make another video with images and everything, whatever. तो उस पर जो आपका मशीन होता है वहाँ पे आपको दिख जाता है उसका जो लेवल है. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स फिल्ड अप. ठीक है, पाइपलाइन से भी है, सिलेंडर से भी है, ये आपको मेक श्योर करना होता है. बिकॉज ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रस एक तरफ से हम लोग माफ भी कर दें, बट ऑक्सीजन यू हैव टू चेक. ओके, बिकॉज अदरवाइज इफ यू हैव नो ऑक्सीजन यू डोंट नो व्हाट विल हैपन देन, राइट. देन मतलब उसके बाद आपके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं. इफ पेशेंट इज desaturating, something is happening, there is nothing you can do if you don't have oxygen with you, right? So you have to check whether you have your oxygen or not. Then, so the next thing which is really important is I'm going to give you a mnemonic, and that is MALES. Okay, now इसमें जो है M stands for masks. ठीक है, मास्क आपको रखने हैं 3 नंबर, 4 नंबर फॉर एडल्ट्स. फॉर पीड्स विल टॉक अबाउट इट लेटर. स्मॉलर साइज के जो मास्क आते हैं वो रखने होते हैं. नाउ
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मास्क यू आर हैविंग, बट ये यूजुअली रखना होता है. ब्लैक रबर एनाटॉमिकल मास्क जो होता है वो हम यूज किया करते थे, एंड इट्स द मोस्ट मतलब मैं क्या बोलूँ, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद. अदर दैन दैट वी हैव अदर टाइप्स ऑफ मास्क ऑल्सो कमिंग इन. तो ये भी जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी है, ये भी रखना होता है. देन वी ऑल्सो रिक्वायर एयरवेज, राइट. एयरवेज अगेन आपको 3-4 नंबर के रखने चाहिए. एयरवे इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि when you are doing your bag and mask, you might not be able to ventilate because of a tongue fall. So it's important you put in an airway. कभी कभी डिफिकल्ट एयरवे वाले जो पेशेंट्स होते हैं, डिफिकल्ट ओबीज और जो लार्ज टंग ऐसे टाइप के पेशेंट्स में टंग फॉल बहुत इजीली हो जाता है. यू विल नॉट बी एबल टू वेंटिलेट वेरी इजीली विदाउट एन एयरवे. सो एयरवे इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स एन इमरजेंसी डिवाइस. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर एयरवे. एल स्टैंड्स फॉर योर लैरिंगोस्कोप. ओके, अगेन दिस हैज टू बी 3 और 4 नंबर का ब्लेड आपको रखना होगा, which is, usually we use the curved ones. Okay. E stands for ET tubes, endotracheal tubes. So again, we should keep from 6.5 or 6 to around 8 or 8.5. ठीक है, कोई भी रेंज में आपको अडल्ट के लिए इतने, पीड्स के बारे में अलग से बात करूंगी. एंड S stands for your suction. So you need to make sure you have your suction catheter, the green one, which is for the adults. And plus you also have to make sure that the suction is working. हमको इस बात पे भी मार पड़ती थी that your suction is not working, you have not checked it. Now let me tell you, हमको डांट पड़ती थी, हम इसलिए करते थे, but let me tell you why you should check it. The reason you should check it is कभी भी आपको ऐसा पेशेंट मिल सकता है जिसमें बहुत सारे सिक्रीशन है, आपको आप स्कोपी कर रहे हो, सिक्रीशन आए जा रहे हैं, कुछ हो रहा है. ठीक है, लेट्स से इट्स एन एक्सट्यूबेशन. ठीक है, एक्सट्यूबेशन है, ENT का पेशेंट था और उसमें ब्लीड हुए जा रहा है, यू हैव टू सक्शन, राइट. व्हाट इफ योर सक्शन स्टॉप्स वर्किंग एंड सडनली ऑल ऑफ योर ब्लड इज इनसाइड योर ट्रकिया? डजंट साउंड गुड, राइट. सो you need to make sure your suction is working the first thing in the morning. It's very important. And ये हमारा स्टैंडर्ड हुआ करता था. दिस इज, लेट मी से, इट इज गोल्ड, बिकॉज लाइक सम पीपल बिलीव कि ये सिर्फ GA में हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. जब अगर रीजनल केस हो रहा है, जब स्पाइनल हो रहा है, यू कैन जस्ट लीव दिस आउट, यू डोंट केयर इफ इट्स देयर और नॉट. बट लेट मी टेल यू, आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एनेस्थीसिया में, कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू कैन हैव अ पेशेंट हु इज इन स्पाइनल गो इनटू हाई स्पाइनल, सडनली डीसैचुरेटिंग, सडनली GCS डिटीरियोरेटिंग. यू नेवर नो. यू कैन हैव अ रीजनल एनेस्थीसिया वाला पेशेंट, आपने ब्लॉक दिया हुआ है, सडनली न्यूमो में चला गया. What will you do with those kinds of situations? Will you bring stuff from some other OT? Will you keep running around thinking cluelessly about what to do? Or should you have all your emergency equipment ready? You should have everything ready, right? Yeah. So that is the reason why I say you should have all these things irrespective of whether it's spinal, regional, GA. I don't care. I think in every OT, all these things should be there. Okay? And आई वुड जस्ट से, हाँ, सबसे पहले आपको यही चीज़ें रखनी है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज, यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दिस विथ यू. ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ें हैं वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग यू डू इज चेक योर मशीन. द सेकेंड थिंग यू डू इज चेक द सोडा लाइम. थर्ड थिंग यू डू इज डिटैंगल ऑल ऑफ योर मॉनिटर्स के जो भी वायर्स हैं. चेक फॉर नाइट्रस एंड ऑक्सीजन. एंड द फिफ्थ थिंग यू डू is keep all your basic emergency equipment with you, that is your meals. The next thing that you need to look at, which is the 6th thing, is your difficult airway equipment. ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है. इसमें आता है तुम्हारा बूजी, इसमें आएगा मैगिल्स and your stillet. So all this can be used for your difficult airway. ठीक है, और अब मैं बताती हूँ, हम लोग का ये प्रैक्टिस था कि irrespective of difficult airway or not, we used to always keep this in our OT. Reason being, कभी भी कुछ भी होता है. I've been practicing since more than 2 years now. So let me just tell you, you can encounter unanticipated difficult airway anytime.
आपको बहुत ईजी एयरवे लग रहा होगा देख करके, पेशेंट दुबला पतला सा एकदम लग रहा होगा कि क्या ही डिफिकल्ट होगा इसके अंदर, बट दैट पेशेंट ऑल्सो कैन प्रेजेंट विद एन एंटीरियर वोकल कॉर्ड। उसमें भी डिफिकल्ट एयरवे हो सकता है, आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, पर हो सकता है। उन केसेस में आपको रेडी रहना चाहिए विद दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट, सो दैट, देखो मेरे साथ हुआ है, मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा होता है, बट what to do in these kind of cases, just be ready with everything, ठीक है। फिर अगर आपके पास जैसे आपको हल्का सा ही दिख रहा है but you have bougie with you, you can easily insert it, you can slide an ED tube over it and your tube is just inside, okay। तो I would just say keep all of these things with you, क्योंकि it's a good practice for your future। ज़रूरी नहीं होगा, अभी फ़िलहाल नहीं होगा, बट आपको आगे चल के काम ज़रूर आएगा। So yeah, so the sixth thing that I want you to keep is your difficult airway equipment. Of course, if it's something that is anticipated, your preparation will be completely different. But ये मैं बता रही हूँ for general purposes, ठीक है, basic बता रही हूँ OT preparation का। The seventh thing that you should keep with you, or that you should check, is your vaporizer. By that I mean your CVO or your ISO, whatever, or some places you might have your desflurane. Whatever you have, whatever your OT has, you should have at least one of these vaporizers, even for regional cases. Keep one with you. You never know when what happens. You just need to have one in your OT. CVO is usually preferred for your PEDS cases, and हमारे यहाँ ये था, मेरा जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ हम CVO यूज़ ISO यूज़ करते थे regularly. Now this can be different in different institutes, different places. So you find out which one is the standard for your place, and make sure to keep one of these things in your OT. Plus, one more thing that you have to check for these things is that it is filled or not, क्योंकि इस पे भी पड़ती है। The thing is, you might have a vaporizer, but उसका level बहुत कम होगा, है ना। तो for it to work, obviously it should be filled, it should be there, है ना। तो आपको make sure करना है कि it is filled. If आप morning में आते हो और वो filled नहीं है, तो उसको आपको fill करना होता है, ठीक है, fill करना होता है। There is a you might find it in your, मतलब usually जो technicians होते हैं वो दे देते हैं आपको भरने के लिए, तो you find out कहाँ से लेके आना है, क्या करना है, and just fill it up. You get a bottle and उससे आप fill कर दो, so that अचानक ये होता है, ये हमारे साथ हुआ है काफ़ी बार कि हम केस चल रही है and suddenly patient is tacky or BP is increasing, and suddenly your senior comes in and they're like, why is the patient so tacky and BP is rising up, and they just come and they just take a look at your vaporizer and they see that it's not actually there, it's completely empty. So then they will they will shout at you really badly. So it's a very small thing, बट यार मैं सच बता रही हूँ, एनेस्थीसिया में एवरीथिंग इज अ स्मॉल थिंग ओनली। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ कि इन्हीं चीज़ों पे आपको सीनियर्स ताने भी सुनाएंगे, और इन्हीं चीज़ों से यू विल बिकम बेटर एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होगा कि यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो मतलब यूजुअली पहले तो सिखाई जाती थी, आजकल मुझे लग नहीं रहा कोई सिखा रहा है। सो आई एम जस्ट, दिस इज़ अ वेरी लाइक आई से इट्स एन हम्बल अटेम्प्ट टू जस्ट टीच यू whatever I know. Okay, so the next thing you should make sure, हमारे यहाँ again ऐसा होता था that हमारी responsibility होती थी to keep a head ring if in case it's a GA का केस या फिर अगर टीवा का केस है तो हमें हेड रिंग रखना होता था। एंड इन केस ऑफ स्पाइनल और रीजनल एनेस्थीसिया हमको पिल्लोज रखने होते थे, उस पर भी हमको प्रोसीजर नहीं देते थे यार, हमको प्रोसीजर नहीं देते थे ये सब चीज़ों, मतलब हेड रिंग नहीं दिखा ओटी में और प्रोसीजर इज गॉन, हमारा ऐसा होता था। नाउ इट माइट लुक लाइक अ रियली स्मॉल थिंग फॉर यू, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है, कितना वैल्यू है, आपको आगे चल के समझ में आएगा। फॉर नाउ जस्ट मतलब इसको याद रख लो कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद you should have your stickings. Now stickings आपको यूजुअली आजकल मुझे लगता है किसी को बोलते नहीं होंगे रेसिडेंट्स को करने के लिए, बट यू शुड जस्ट नो दैट स्टिकिंग्स में आपके पास ये जो डायनाप्लास्ट के होते हैं स्टिकिंग्स आपको आईवी के और ईटी ट्यूब के लिए स्टिकिंग्स कट करके रखने होते हैं। आईवी के ऑब्वियसली आपको पता होंगे कैसे होते हैं, और ईटी ट्यूब के भी आपको पता ही होंगे। ईटी ट्यूब फिक्स करने के लिए एक तरीके के लॉन्ग स्टिकिंग बनाए जाते हैं, एकदम लंबे लंबे से ऐसे टाइप के, एंड आईवी के ऑब्वियसली
ऐसे ऐसे कट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग को खुद बनाना होता था ये सब। तो what I would just suggest is you make sure you have all of these things with you. Okay, and एक और स्टिकिंग्स होते थे, वो होते थे माइक्रोपोर के स्टिकिंग्स, एंड ये होते थे फॉर आई, जो जीएम है, आईज क्लोज करने के लिए आप यूज़ करते हो। तो जैसे जैसे आईज जो हैं क्लोज होती हैं, तो यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है आई स्टिकिंग, ठीक है। तो आई स्टिकिंग एक होता है जो आपको कट करना होता है फॉर माइक्रोपोर, एंड द अदर थिंग यू नीड इज़ फॉर एपिड्यूरल। एपिड्यूरल के लिए लंबे स्टिकिंग्स कट करने होते हैं, लाइक सो, एंड इतने 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 साइज़ के। ये बेसिकली जो आपका बैक होता है, इस पे इस तरह से लगाया जाता है, एंड हम खुद ही काटते थे। अब आजकल मुझे लगता है टेक्नीशियंस कट करते हैं, बट यू शुड जस्ट नो दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स विथ यू, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अदर दैन दिस, you know, since we talked already about the IV sticking, you should have your IV cannulas with you. Again, for adults, you should be having around 20 gauge K, 18 gauge K, even 16 gauge K. In case of high risk cases, you need to have, these are oral cannulas, which you need to have for, you know, high risk cases, especially, and in cases where there's a lot of blood loss that has been estimated. Otherwise, this is usually the standard, and usually, मतलब cases हो जाते हैं इसको लेकर के. Then you need to have IV sets with you. This is also something कि हमें खुद लाना होता था. Now I don't know आजकल क्या है, but we used to make sure that this is inside our OT. और इसके साथ ही साथ हमें make sure करना होता था हमारे पास 3 ways भी हैं, because it makes working really easy. अब मुझे पता है बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं 3 वे, आजकल ऐसे ही होता है। जैसे आप फ्रीलांसिंग वगैरह करने चाहोगे, आपको 3 वे वगैरह आप जनरली यूज़ नहीं कर पाते हो, बट येस इन योर इनिशियल डेज, लाइक इन मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली, आई हैव सीन कि 3 वेज यूज़ किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इट्स, आई थिंक, अ गुड प्रैक्टिस, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू वर्क विदाउट इट. But as a student, I feel you should be working with these things just to make yourself aware and more habitual with these things. और इसके बाद आप रखोगे 3 से 4, एटलीस्ट फॉर 1 केस, RL और NS आप रखोगे, एंड इन चीज़ों का मेक अ पॉइंट एंड कीप, मतलब एक जो RL है या NS है, इसको आप IV सेट से अटैच करके, 3 वे से अटैच करके, ओके, आई एम मेकिंग अ 3 वे, व्हाटएवर, ओके, सो अटैच करके आप IV स्टैंड पे, यहाँ IV स्टैंड है, लटका दो IV स्टैंड पे, ठीक है। सो या ओके, व्हाटएवर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ भी ना आप करके रख लो, बिकॉज ईजियर होता है। नाउ सम प्लेसेस यू माइट हैव पेशेंट्स कमिंग इन विद दीज थिंग्स, ठीक है, उनका ऑलरेडी बना हुआ होगा, RL NS कुछ अटैच करके आया होगा पेशेंट अगर, तो ऑब्वियसली आपको वही यूज़ करना है। इफ नहीं है तो जस्ट मेक श्योर कि ये सब सामान एटलीस्ट आपके पास OT में हो, सो दैट once the patient is inside, you are not running around. ये नहीं होना चाहिए. Running around is bad, and to be very honest, it makes your senior angry. ठीक है, तो try not running around. Maybe I shouldn't have written it. Anyhow, मैं बस बताना चाहती हूँ that see, it doesn't give a good impression. Even now, if I get technicians who are like running around while I'm asking them for something. I remember once I was in the OT and I just asked a technician, I was doing freelancing, and I just asked the technician for RL, and he just vanished. He got scared and he vanished. And I was like, so it's just something that shows that you're not confident, or I don't know. It's just a good practice to have everything inside your OT. सीनियर ने कुछ भी मांगा हाथ में ला करके रख दो. It's a very good practice. ठीक है. चलो ये एक चीज हो गई ना. Other than this, you need to have jelly, Lox 2% plus eye ointment. दोनों बड़े ही काम की चीज है. ठीक है, सर्जन मांग सकता है, आपका सीनियर आपसे मांग सकता है, कोई भी आकर के मांग सकता है. These things should be inside your OT. Importance you will understand as you become an anesthesiologist.
यू शुड हैव NS 100 ml, ठीक है, 3-4 होने चाहिए ओटी में, स्पेशली व्हेन यू आर अ स्टूडेंट और रेसिडेंट, यू शुड हैव दिस इन योर ओटी. इसके अलावा I think to make your work easier, you should have pink needles, which is your 18 gauge needles, to make your life easier. ठीक है. इसके अलावा you need to have all your drugs, your emergency and anesthesia related drugs. अब इसके बारे में I think I can make another video because the video will become too long if I keep talking about this as well. And lastly, I would just say gloves होने चाहिए. हमको पड़ती थी इस पे अगेन कि हमारे साथ ये भी हुआ है कि gloves नहीं मिले हो तो उस पे भी हमें चिल्लाया जाता था. तो you should make sure you have plain and sterile gloves in your OT. Again, this is not as important, या मैं ये नहीं बोलूँगी कि emergency में कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ दैट लग जाता है ओटी में, ठीक है. यू डोंट नो व्हेन आपको यू नो इमरजेंसी में कुछ भी करना पड़ सकता है, तो आपके पास ये सब अवेलेबल होना चाहिए. इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर फ्रीलांसिंग, मैं कॉन्स्टेंटली ये सब चीज़ें ढूंढ के रख लेती थी कि कहाँ क्या रखा है, इन केस मुझे कभी भी कुछ भी करना पड़ गया तो मैं तुरंत ये पहन के अपना काम स्टार्ट कर दूँ, ठीक है. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. एंड I will talk more about emergency drugs and anesthesia related drugs जो OT में होनी चाहिए. And इसके अलावा जो आपको OT prep है ना, ये बेसिक्स हो गई जो OT में होनी चाहिए. इसके अलावा like if you talk about GA, you have to also load the drugs, ठीक है. स्पाइनल के लिए आपको एक अलग स्पाइनल का ही सेट वगैरह प्रिपेयर करना पड़ता है, एक ट्रॉली प्रिपेयर करनी पड़ती है. एंड सेम गोज फॉर योर रीजनल, यू हैव टू प्रिपेयर another trolley for that, another set of things for that, which I will cover again ahead in future videos if you do want. And yeah, that's all for this video. I feel क्योंकि मैं और बात कर सकती हूँ but बहुत lengthy हो जाएगा and then I don't think anyone will keep an interest to listen to me further on. So let me talk about the drugs in another video, and each of these things, general, spinal, regional, in separate videos. So far I would just say these are important things. आपको लगेगा ना अभी कि इन सब चीज़ों का क्या ही मतलब है, आपको लग सकता है at this point of time, but trust me when I tell you that this is something that a lot of people are missing. मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेजेस में और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में सीनियर्स इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाने के लिए. द रीज़न बीइंग कि उनकी खुद की लाइफ है, वो खुद अपना इतने साल पढ़ाई लिखाई करके निकलते हैं एंड नोबडी इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड टू टीच बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग मनी फॉर दैट. दे आर अर्निंग मनी टू हैंडल द केसेस एंड एवरीथिंग. एंड पर्सनली कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा आई थिंक ये सब चीज़ें सिखाने में. बट yeah, this was my humble attempt. Some people obviously are there who would teach like this, but सब नहीं होते, हर जगह नहीं होते. So this is just my attempt to reach to people whoever are trying to learn, who are just entering first year of anesthesia, and try these things out, see how it feels. And अगर आपको ज़्यादा काम लगता है ये, अगर आपका काम ओटी में यही है कि जाके वेंटी चेक करना है, ड्रग्स लोड करना है या जो कुछ भी, डू दैट, डू एज यू विश. बट आई जस्ट फील कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में भी रखो क्योंकि आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगी. लाइक आगे चल के ये होगा कि आपके पास टेक्नीशियंस होंगे, बच्चे होंगे, यू बिकम अ प्रोफेसर और समथिंग, यू हैव किड्स अंडर यू. बट स्टिल देखो, अब जैसे मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ तो मेरे ऊपर भी लोग हैं, तो वो लोग भी देखते हैं कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि, एंड पीपल अंडरस्टैंड, ओके, वंस पीपल सी यू वर्किंग they will understand whether you know your thing or not, and it's always better to know your own thing, know what you're doing. And since this is going to be your field for the rest of your life, I think basics obviously pata hone chahiye sabko. So yeah, that's all I wanted to tell you guys. And let me know how you felt about this video. Let me know if you want me to keep talking about OT preparation, and let me know if there are any other things, any other topics that you want me to be talking about, and I'll see you for another video.